Hello, everybody. How are you all? Hope you are all doing great. And this is Anuj. And today I'm going to have a discussion with you all on one of the most interesting circular of Insolvency and Bankruptcy Board of India. The circular has been issued on 17th of March, as you can see out on my screen. 17th March 2025. So circular is quite uh, new. अभी recently थी कह सकते हो कि कुछ दिनों पहले इशू किया गया है एंड दिस इज द सर्कुलर नंबर here you can check out circular number 83 oblique 2025. So this is the circular number, and you can check out this circular on the website of the Insolvency and Bankruptcy Board of India. And this circular is basically related to the disclosure uh, which has to be given by the resolution professional while preparing information memorandum. And I'm very much confident that you people are very much aware about the information memorandum. But yes, I would like to have small discussion on information memorandum. Basically, uh, buddy, information memorandum, in short, we call it IM, right? So this information memorandum अर्लियर क्या हुआ करता था कि इसे आईआरपी को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई करती थी, बट आफ्टर अमेंडमेंट इन आईबीसी कोड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम विल बी प्रिपेयर्ड बाय आरपी, राइट? आरपी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को बनाएगी और एक ऐसी मेमोरेंडम है जिसके अंदर कॉर्पोरेट डेटा से रिलेटेड, है ना, तमाम इंफॉर्मेशंस को डिस्क्लोज की जाएगी. All those informations which are very much crucial for taking a decision by an investors in order to give a very comprehensive and viable resolution plan. So हम लोग कह सकते हैं कि on the basis of the informations and records or the documents जो कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में प्रोवाइड की जाती हैं, वो इंफॉर्मेशन काफ़ी क्रूशियल होने वाली होती हैं, बिकॉज ऑन दैट बेसिस इट सेल्फ रेजोल्यूशन जो एप्लीकेंट होता है वो रेजोल्यूशन प्लान बनाता है और वो सबमिट करता है सीडी के लिए, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आईएम बनाया जाता है वो किसके लिए बनाया जा रहा है? रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के लिए बनाया जा रहा है, बिकॉज ऑन दैट बेसिस रेजोल्यूशन प्लान कैन बी प्रिपेयर्ड. ठीक है, तो इसकी कुछ एक रिक्वायरमेंट है. रिक्वायरमेंट फर्स्ट है कि दिस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, दिस आईएम is very much crucial document for the corporate data, and this document is prepared by the resolution professionals. Earlier इसको IRP के द्वारा बनाया जाता था, but now it is prepared by the RP. Okay, and once this information memorandum is prepared, RP shall also place it before the COC. ठीक है, COC से एक कॉन्फिडेंशियल अंडरटेकिंग लिया जाएगा एंड IM को प्लेस कर दिया जाएगा COC के बिफोर कि IM इज प्रिपेयर्ड नाउ रेडी, एंड ये डिस्क्लोज किया जा सकता है, मतलब दी जा सकती है COC मेंबर्स को. बट प्रोवाइडेड देयर इज ए रिक्वायरमेंट कि आरपी एक कॉन्फिडेंशियल अंडरटेकिंग कहाँ से लेगा? वो COC मेंबर्स से लेंगे कि जो इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में, दैट इंफॉर्मेशन शैल बी कह सकते हो कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो उसकी है वो मेंटेन किया जाएगा, वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा और उससे कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं ली जाएगी. सो कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए आरपी को एक कॉन्फिडेंशियल अंडरटेकिंग लेना पड़ेगा किससे? COC मेंबर से, राइट गाइस? फाइन. And then this information memorandum will be also circulated to the PRA, जिसको हम लोग prospective resolution applicant बोलते हैं. Once their name is reflected in the final list of PRA, तो उनको क्या है कि IM दी जाएगी, and they also give a confidential undertaking along with their UI documents. So कह सकते हैं कि without taking confidential undertaking, we are not going to circulate information memorandum to anyone, either there is a COC members or the prospective resolution applicant. So things should be kept in the mind कि हमें IM circulate करने से पहले confidential undertaking लेना जरूरी है, राइट? तो ये तो हमारा जनरल बात हो गया pertaining to the information memorandum. और हमारे जो आज की ये डिस्कशन है बेसिकली इट्स कम्प्लीटली कह सकते हैं कि
सर्कुलर्स इसी सर्कुलर्स के ऊपर होने वाले हैं, इसी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम से ही होने वाली है, बिकॉज इन दिस सर्कुलर्स आईबीबीआई ने ये बताया है कि जो आईएम बनाया जाता है ना, मैंने ये आपको ऑलरेडी बता ही दिया हूँ कि आईएम एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसमें कि बहुत सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की जाती है इन ऑर्डर टू टेक एंड इन्फॉर्म्ड, और कह सकते हो comprehensive decision in order to crafting a resolution plan for the corporate debtors. So वो तमाम इंफॉर्मेशन आईएम में आप प्रोवाइड करो जो कि पीआरओ को हेल्प करेगा, एक कह सकते हो क्राफ्ट प्रॉपर रेजोल्यूशन प्लान को बनाने में हेल्प करेगा। बिकॉज गाइस देखो, कॉम्प्लेक्सिटीज इसके साथ ये है कि आप कोई ऐसे इंफॉर्मेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट डेटर के लिए, जैसे कि कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की, ठीक है, अदर लॉसेस की जो सीडी को हुई है, तो वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में होना जरूरी है। बिकॉज एक जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो आ रहा है रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करने के लिए, एंड इफ दे विल they don't have any idea about ki, how much carry forward losses are with the corporate debtor, then probably they will not able to craft a better resolution plans, because they are not having a idea about how much there is carry forward losses available with the corporate data. So now it becomes very much important कि आप जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना रहे हो उस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर आप कैरी फॉरवर्ड की जो टोटल लॉसेस है along with its proper descriptions should be there, so PRA can take a informed decision। and यदि वो कैरी फॉरवर्ड की डिटेल्स होगी नहीं तो फिर somehow it will create difficulties after approval of the resolution plan। So कुछ एक केसेस में तो लोग जो कह सकते हैं कि कैरी फॉरवर्ड की लॉसेस बता देते हैं, बट वो प्रॉपर नहीं होता था तो भी डिफिकल्टीज होती थी। सो नाउ आईबीबीआई कैम अब विद दिस सर्कुलर्स, और इस सर्कुलर्स में यही बताया गया है कि डिस्क्लोजर्स ऑफ, ठीक है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कैरी फॉरवर्ड लॉसेस इन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। सो गाइस, para number 1 of this circulars, the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) had amended Regulation 36, guys, जो दो important regulations हैं pertaining to the preparation of information memorandum. One is Section 29 of IBC Code and Regulation, ठीक है, Regulation 36 of IBBI CIRP regulations 2016. So there are two important provisions, कह सकते हैं कि जो legal provisions हैं, Section 29 and Regulation 36. Section 29 gives us contents which has to be prescribed in the information memorandum, and Regulation 36, which also deals with information memorandum, provides certain other aspects pertaining to the information memorandum. So if you want to get a complete idea about the information memorandum, its content, its procedural requirement, legal framework, legal requirements, then you must check out section 29 and 36, ठीक है। I'm not going to have a discussion on the section 29 and regulation 36 because our discussion is completely based on circulars, okay, so you can check out। So इसमें यही बताया जा रहा है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI had amended Regulation 36 of IBBI Insolvency Resolution Process for Corporate Person Regulation 2016 CRP regulations को amend किया गया है to mandate the disclosure of carry forward of losses as per the Income Tax Act 1960. The information memorandum. Further, insolvency professionals (IPs) were also advised to ensure comprehensive capture of the details related to carry forward losses and disclosure thereof। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो डिस्क्लोजर देना pertaining to the carry forward losses becomes important, ठीक है। तो जितना भी carry forward losses आ रहा है as per requirement of the companies act, income tax act 1961, that should be disclosed under the information memorandum। Further, insolvency professionals were also advised to ensure comprehensive capture of the details related to carry forward losses and the disclosure thereof। So para one of these circulars para one of these circulars cast two important
ड्यूटीज कह सकते हो कि टू जो ऑब्लिगेशन आरपी के ऊपर ही दे रहा है कि आप अ, जो है एक तो डिस्क्लोजर दोगे ही, है ना, डिस्क्लोजर्स दोगे। सेकंड, जो डिस्क्लोजर होगा दैट शुड बी वेरी मच कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव कैप्चर ऑफ द डिस्क्लोजर, आप मतलब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे पर पर्टेनिंग टू द कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ताकि लोग को जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हैं उनको क्लियरली आइडिया लग सके कि कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है वो किस चीज़ के लिए है, कितनी लॉसेस हैं, कौन सी ईयर्स की है, कब तक वो लॉसेस की कैरी फॉरवर्ड ली जा सकती है आफ्टर अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। It can be easy for the resolution applicant to prepare a resolution plan. So para number one of this circular is clear. Second para, which states that upon review of the recent information memorandum, the board has observed that disclosure of the carry forward losses by the insolvency professionals need to be more robust. Point to be noted, guys, more robust. Accordingly, it is hereby directed, इसलिए डायरेक्ट की जाती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को, that all the insolvency professionals shall include a dedicated sections in IM, मतलब आपको एक proper clause डालना है information memorandum में, which shall explicitly detail the carry forward losses under the Income Tax Act 1961. This section shall prominently highlight बट इट इज नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। देखो, अब आईबीबीआई ने रिसेंटली कुछ एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को चेक किया जो कि आरपी ने बना करके सबमिट किया होगा, आरपी ने बना करके सर्कुलेट किया होगा प्रोस्पेक्टिव रेजुलेशन एप्लीकेंट को। तो उसमें आईबीबीआई ने देखा कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है रिलेटिंग टू द कैरी फॉरवर्ड लॉसेस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज नॉट कंप्लीट, वो कंप्लीट और रोबस्ट नहीं था। तो ऐसा रिक्वायरमेंट, ऐसा महसूस किया जाता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ पीआरओ को डिफिकल्टी क्रिएट करती है और अननेसेसरी प्रोसेस में डिले हो जाती है, बिकॉज जो चीज़ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को पता ही नहीं है कि कितनी कैरी फॉरवर्ड की लॉसेस है, वो लॉसेस किस चीज़ के लिए, किस हेड की है, वो लॉसेस को कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो now things will become very difficult after approval of the resolution plans if the resolution applicants want to get the benefit of these carry forward losses. So it is felt by the Insolvency and Bankruptcy Board of India that there should be a dedicated sections in the information memorandum. It means dedicated paras, है ना, उस पैरा में कैरी फॉरवर्ड लॉसेस से रिलेटेड सारी चीज़ें की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। कैटेगोरिकली यदि हम कहें तो उसमें द क्वांटम ऑफ द कैरी फॉरवर्ड लॉसेस कि कितने की क्या क्वांटम है, कितने की लॉसेस हैं अवेलेबल टू द कॉर्पोरेट डेटर। सेकंड, a breakdown of these losses under a specific heads as per the income tax act, है ना, हेड वाइज उसका बाइफर्केशन होनी चाहिए। द एप्लीकेबल टाइम लिमिट फॉर यूटिलाइजिंग दीज लॉसेस, कब तक उस लॉसेस को यूटिलाइज किया जा सकता है। इफ देयर आर नो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस अवेलेबल टू द कॉर्पोरेट डेटर, द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम शुड एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई द फैक्ट। यदि कोई कैरी फॉरवर्ड की लॉसेस नहीं है देन इट शुड बी आल्सो क्लियरली स्टेटेड देयर, राइट। सो जो हमारा पैरा नंबर 2 है ऑफ दिस सर्कुलर इज ऑल्सो क्लियर, ठीक है। तो इसमें रिक्वायरमेंट यही है कि आप कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की एक प्रॉपर सेक्शन बना दो, प्रॉपर क्लॉज बना दो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर, और उसमें कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन आप दो, रोबस्ट इंफॉर्मेशन दो, कितने की कैरी फॉरवर्ड लॉस है, ठीक है, कब तक के लॉसेस को यूटिलाइज किया जा सकता है, किस हेड की लॉसेस हैं, ठीक है। और कैरी फॉरवर्ड की लॉसेस नहीं है देन यू शुड आल्सो मेंशन कि देयर इज नो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस अवेलेबल विद द कॉर्पोरेट डेटर, तो वो भी चीज़ आपको उसमें बताना है। होप दिस इज क्लियर नाउ गाइस, है ना। Para number third, if we talk about the para number third, then it say
This enhanced disclosure framework is intended to provide potential resolution applicants with a more comprehensive understanding of the corporate debtors' financial positions, enabling them to develop more informed and viable resolution plans while considering the benefits of the carry forward losses. Guys, देखो somehow जब कोई भी कॉर्पोरेट डेटर के पास ना गाइस यदि कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में एक कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो इट बिकम्स वेरी मच कन्वीनियंट फॉर द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट टू क्राफ्ट अ वायबल एंड मोर कह सकते हो कि फ्रूटफुल और इफेक्टिव रेजोल्यूशन प्लान्स, जिससे कि सीडी को प्रॉपर वे में रिजॉल्व की जा सकते हैं। बट यदि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होंगे, ठीक है, तो समहाउ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट विल प्रिपेयर द रेजोल्यूशन प्लान ऑन दैट बेसिस ओनली, तो it will it it can create a difficulties at later stage because RA जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में दी गई उस बेसिस पे रेजोल्यूशन प्लान बना दिया गया और प्लान अप्रूव हो जाती है, तो फिर जब इम्प्लीमेंटेशन वाली फेज आएगी तो वहां पे जाकर के चीजें निकल कर आएगी और वो चीजें कहीं ना कहीं हर्डल क्रिएट करेगा। तो थिंग्स इज इशू यहाँ पे आ जाती है। सेकेंड चीज इसमें ये है कि ये जो सर्कुलर इशू किया गया है इसका इंटेंट बस इतना ही है कि जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स हैं उनको एक पोटेंशियल इंफॉर्मेशन, जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, वो प्रोवाइड की जाए, सो दे कैन प्रिपेयर अ मोर दे कैन हैव अ मोर comprehensive understanding about the financial information of the corporate data, कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में उनको कंप्लीट जानकारी हो सके एंड दे कैन डेवलप मोर इन्फॉर्म्ड एंड वायबल रेजोल्यूशन प्लान्स, और एक अच्छे रेजोल्यूशन प्लान्स जो वायबल, जो कि वायबल और फिजिबल रेजोल्यूशन प्लान को डेवलप कर पाए, बना पाए और सीडी के लिए सबमिट कर पाए। सेकेंड चीज यहाँ पे एक ऐड करना चाहूंगा गाइस कि देखो यदि सीडी के पास ना कैरी फॉरवर्ड की लॉसेस होती है और उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो somehow इट अट्रैक्ट्स टू द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट एज वेल, क्योंकि उनको बेनिफिट्स मिलेगा लॉसेस का, ठीक है। तो इट ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड को दो, शो की ज़्यादा से ज़्यादा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को ये अट्रैक्ट भी कर पाए, है ना। थर्ड फोर्थ पैरा इज वही है कि IBBI ने सेक्शन 196 की तहत सर्कुलर्स को इशू किया है। सो गाइस सर्कुलर काफ़ी छोटी थी बट द रेलिवेंस ऑफ दिस सर्कुलर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि इस साल ये इन द ईयर्स ऑफ 2024 इट्स ऑल्सो देयर वाज अ सर्कुलर्स, और आई थिंक इस तरीके से कुछ तो आया था जिसमें कि IBBI वहाँ पे इसी सेम चीज़ को रिपीट किया था कि it becomes mandatory for every RP to provide a dedicated uh, section in the IM pertaining to the disclosure of the carry forward losses. तो ये चीज 2024 में भी आया था। अगेन IBBI came up with these circulars on 17th of March 2025. Hope IBBI is stressing upon the matter and creating more and more awareness, so कि इस IAM के अंदर कैरी फॉरवर्ड की लॉसेस की जानकारी प्रॉपर दी जा सके। सो गाइस आई एम वेरी मच होपफुल दैट कि आपको इससे कोई ना कोई आइडिया तो मिला ही होगा, एंड नाउ you can also craft a better information memorandum if you are doing mm, work with the IP entity or insolvency professionals. Thank you very much for watching these videos. Thanks.